वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हमने इनवर्स फाइंड करने के एग्जांपल्स देखे, उसका मेथड देखा। मैंने एक ऐसा एग्जांपल लेके मैंने दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इनवर्स फाइंड किया। वी गॉट सेम इनवर्स थ्रू रो ट्रांसफॉर्मेशन as well as through column transformation. Similarly, in exercise also, there are certain questions in which they are asking us to find inverse, and in that they have asked this sixth question where instruction is such: find the inverse of the following matrices by transformation method. और आपको दो अलग अलग मैट्रिक्स दिए हुए हैं. फर्स्ट इन विच is a square matrix of order 2 and second is a square matrix of order 3. Now for both we have to find inverse. Now as such in instruction they have not specified that which transformation is to be used. So in general they have said that transformation method is to be applied. So now choice is up to us that we can go with row transformation or column transformation. So any one way we should find the inverse. Let us start with the first question. हमें जो भी गिवन मैट्रिक्स दिया है उसको मैट्रिक्स ए अज्यूम कर लेना है. लेट ए बी दिस गिवन मैट्रिक्स. In the first case it is square matrix of order 2. Before we start our process, first thing we should confirm, as you know, that a matrix for which we are going to find its inverse, it should be non-singular. So we will find determinant A. Minus 5, and this is not equal to 0. Therefore determinant A is not equal to 0. Therefore A is non-singular matrix. Therefore we can say A inverse does exist, or you may also write like this: matrix A is invertible. You can use this statement also. Matrix A is invertible. इसका मतलब होता है कि A inverse possible है find करना. Now we are going with row transformation. Generally as compared to column transformation, row transformation थोड़ा इजी पड़ जाता है. रो ऑपरेशन करना हमारे लिए थोड़ा आसान होता है, इसलिए वो फास्ट भी जाते हैं हम. बाकी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ऑल्सो गो विद दैट. सो यूजिंग
रो ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो उसका फॉर्मूला है A into A inverse is equals to I. A into A inverse is equals to I. So A matrix की जगह पे सब्स्टिट्यूट करो 1 2 2 minus 1. A inverse remains as it is and identity matrix 1 0 0 1. ये इसके फॉर्मेट में हमने लिख लिया. नाउ एज यू नो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स इनटू आई. धीरे धीरे करके आपको उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कन्वर्ट करना है. And you are using row transformation, so your priority to change its element column wise. ये सब नियम को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन को हम सोच सकते हैं. तो चलिए पहला तो एलिमेंट ये 1 है ही पहले से, हमको उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना मतलब 1 0 0 1 में लाना है. तो ये तो एलिमेंट पहले से 1 है ही. दूसरे कॉलम वाइज जा रहे हैं तो दूसरा एलिमेंट जो ये है उसको हमें 0 करना है. So this 2 we have to convert into 0, and for this we will take help of first row. So second row का ये जो एलिमेंट है 2 उसको हमें 0 करना है. तो that we can do with the help of first row. So what we can do, R2 में चेंज चाहिए तो R2 पहले लिखेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे एज इट इज जब भी है तो R2 माइनस R1 करेंगे तो 2 माइनस 1 1 मिल जाएगा. But we wanted to have 0 in that place. So R1 के फर्स्ट यहाँ के एलिमेंट को आप 2 बना दो और फिर उसको इसमें से माइनस कर दो तो आपका वो 0 हो जाएगा. So what we will do, 2 times R1, तो वो 2 into 1 2 हो जाएगा और 2 minus 2 0 हो जाएगा. So R2 minus 2R1 will be our transformation. So R1 तो as it is रहेगा, no change. Change in your R2. So 2 minus 2, this becomes 0. And minus 1 minus 2 into 2. Minus 1 minus 2 into 2. That is minus 1 minus 4. That is minus 5. So here it will be minus 5. Into A inverse is equals to right hand side. दोनों साइड अपने को ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है. So this will be 0 minus 2 into R1. That is 2 into 1. That is 2. So 0 minus 2 into 1. That is minus 2. And then the second element will be 1 minus 2 into 0. That is 1 minus 0, 1. ओरली नहीं होता है तो इस तरह से रफ में कैलकुलेशन करके देख लेने का क्या एलिमेंट आता है. चलिए अब मेरा नेक्स्ट एलिमेंट जो ये है इसको या तो इसको आपको रिक्वायर्ड मैट्रिक्स के हिसाब से कन्वर्ट करना है. सो इफ आई सी इन द सेकेंड रो दिस minus 5, in this I have to convert 1. So to make this 1, entire second row I can divide by minus 5. So minus 5 upon minus 5 1 हो जाएगा. So what I can do, R2 divided by minus 5, or you may write like this, minus 1 upon 5 into R2. दोनों में मीनिंग सेम है, लिखने का तरीका अलग है, बट सेम रिजल्ट वी विल गेट. सो R1 में कुछ चेंज नहीं है, R1 सेम रहेगा 1 2. 0 अपॉन minus 5 that is 0, और minus 5 upon minus 5 1. A inverse is equals to
राइट हैंड साइड में भी इसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। फर्स्ट रो विल रिमेन सेम, सेकेंड रो में ये चेंज आएगा, -2 अपॉन -5 दैट इज +2/5 and 1 upon -5 -1/5. This way right hand side matrix will change. देखो धीरे धीरे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में आ रहा है। अब खाली यहाँ मेरे को 2 के जगह पे 0 लाना है, and for making this to 0 I will use R2 because this 2 is in R1. So to make here 0 I will use second row. So फर्स्ट रो में चेंज लाना है, सो R1 जो 2 है माइनस करूंगा R2, मगर R2 में तो यहाँ 1 है, तो आई विल मेक इट 2 टाइम्स, दैट इज 2R1. सो 2 minus 2 वो 0 हो जाएगा, सो दिस विल बी 2 times R2. सो R1 minus 2R2. पहले जरा मन में चेक कर लेने का, रफली चेक कर लेने का कि ये आपको आंसर रिक्वायर्ड देगा कि नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि जो ऑलरेडी एलिमेंट कन्वर्ट हो चुके हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं देखो R1 में ये 1 की बात करूं तो ये 1 तो 1 पहले से मैंने करके रखा है, इसको मैंने को अभी डिस्टर्ब नहीं होने देना है या इसको चेंज नहीं होने देना है, तो वो चेंज नहीं होगा, वो भी आपको ध्यान रखना है। सो R1 minus 2R2 that will change my R1 in which first element 1 minus 2 into 0, 1 minus 0, 1 का 1 ही रहेगा। देखो मतलब मेरा ये 1 as it is रहा, no change even after applying transformation. This 2 जो पर्पस मेरा यहाँ का ये एलिमेंट चेंज करने का जो है 2 minus 2 into 1, that is 2 minus 2 0, and second row will be as it is. So ये देखिए पूरा आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो चुका है। राइट हैंड साइड का भी इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जीक्यूट करो। R1 that is 1 minus 2 into 2/5, so 1 minus 4/5 and that is 1/5. Then this is 0 minus 2 into minus 1/5, that is plus 2/5. Then second row will remain as it is, 2/5 minus 1/5, and that way now we can write this is identity matrix into A inverse matrix, right hand side as it is. Okay, and as you know I into A inverse that is A inverse. कोई भी मैट्रिक्स I से मल्टीप्लाई हो रहा है सेम। अच्छा, राइट हैंड साइड में से मैं एक काम कर सकता हूँ, सभी एलिमेंट में से 1/5 को कॉमन लेके रख सकता हूँ, 1 2 2 -1। आप y को अंदर भी रख के रिप्रेजेंट कर सकते हो, यू कैन रिमूव इट एज अ कॉमन। सो फाइनली दिस इज योर A इनवर्स। तो प्रोसेस वही है जो हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल भी जो देखा हुआ है, वो ऑर्डर 3 का था। ऑर्डर 2 में बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि उसमें 4 ही एलिमेंट को आपको कंसीडर करना है, फास्ट हो जाता है। तो उल्टे का आपको इजी भी लगता है कि भाई ऑर्डर 2 फास्ट हो गया। नाउ इन दिस सेम क्वेश्चन, in the second one they have given order 3 matrix for which you have to find its inverse. So let us now take the next question. सेम प्रोसेस से हम आगे बढ़ेंगे। कंसीडर करो सॉल्यूशन में इसको, मैट्रिक्स ए
very first we find its determinant value. ठीक है, डायरेक्ट आप ढूंढ सकते हो तो अच्छा है, फटाफट काम करो। 2 3 into 1 3 minus 0 minus 0 into 15 minus 0 plus minus 1 into 5 minus 0. So this is 3 minus 0, 3, 3 into 2, 6. This is totally 0 minus 5 minus 0, 5, 5 into minus 1 minus 5, and 6 minus 5 is equals to 1, which is not equal to 0. Therefore, determinant A is not equal to 0. Therefore, A is non-singular matrix, hence A inverse does exist, or you may write matrix A is invertible. स्टूडेंट एक बात और बता देता हूँ, कभी कभी लोग ऐसे भी छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक मैट्रिक्स आपको स्क्वायर मैट्रिक्स देंगे और खाली इतना पूछते हैं कि क्या इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, कैन वी फाइंड इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, बस इतना पूछ के छोड़ देते हैं। तो अपने को इतना काम करने का कि भाई उसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करके देखने का नॉन सिंगुलर होना है, जो उसका इनवर्स हम फाइंड करना है। तो मतलब ये कंक्लूजन होता है, जो जीरो आ जाएगा एग्जैक्टली सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, तो हमको लिखना पड़ेगा ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट और मैट्रिक्स ए इज नॉट इन्वर्टिबल। ऐसा क्वेश्चन भी छोटा सा पूछ सकते हैं। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड इनवर्स, तो आगे काम करना है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। For which we use this formula A into A inverse is equals to I. चलिए A मैट्रिक्स 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3। ठीक है, नाउ इफ यू सी यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट है जो 2, उसको हमें पहले 1 करना है, जैसे कि हमने ऐसे भी नियम नक्की किया है कि भाई इफ यू आर यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन देन द एलिमेंट शुड बी चेंज्ड कॉलम वाइज। तो पहले कॉलम को हमें हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से चेंज करने के लिए पहला एलिमेंट ये 2 आ रहा है, उसको हमें 1 करना है। और ये रो ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से ये 2 पहले रो में आ रहा है, और वो पहले रो को चेंज करने के लिए हमको सेकेंड या तो थर्ड रो अवेलेबल है, उसका मदद ले सकते हैं। तो ये 2 का 1 कैसे होगा? एक बात तो पक्का है कि ये दूसरे 2 रो का मदद ना ले, सेकंड और थर्ड रो का, इंडिविजुअली ही फर्स्ट रो को हम स्केलर मल्टीपल का वो ट्रांसफॉर्मेशन से बात करें तो 2 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो 1 हो जाता है। मतलब पूरा पहले रो को आपको 2 से डिवाइड कर देना है, ऑटोमेटिकली पहला ये 2 एलिमेंट जो है फर्स्ट उसके जगह पे 1 आ जाएगा। एक रास्ता ये है। कोई स्टूडेंट दूसरा हिसाब भी सोच सकता है जिसके अंदर वो कोई दूसरे
रो की मदद लेके भी इसको चेंज करने का सोच सकता है, और वो कैसे करेगा उस तरह से जो जाना हो तो ये जो सेकेंड रो है जिसमें 5 है और फर्स्ट रो में खुद ये 2 जो है उसको मैं 3 से जो मल्टीप्लाई कर दूं, सेकेंड रो में 5 है और जो फर्स्ट रो में 2 है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 3 टू द 6 हो जाएगा, और 6 में से ये 5 माइनस हो जाए तो 1 बच जाए। आर यू गेटिंग? तो व्हाट वी विल डू फर्स्ट, मेक फर्स्ट रो को मैंने को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना, तो दैट मीन्स R1 पहले लिखना ही पड़ेगा बिकॉज मुझे चेंज किस में लाना है, R1, बट दिस R1 should be multiplied by 3 so that it becomes 6, and then I will minus it R2, that is 5, so that result will be 1। आपको आइडिया आ रहा है ये सब? आपको भी इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन सोचना पड़ेगा। चलो आप अप्लाई करिए प्रॉपरली so that my R1 will change, here it will come 1। अब दूसरे एलिमेंट के हिसाब से बात करिए, 0 उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस R2 दैट इज 1, that is 3 into 0 0 0 minus 1 minus 1, then minus 1 into this 3 minus 0, that is minus 3, बाकी दोनों रो एज इट इज 5 1 0 0 1 3 into A inverse is equals to, राइट हैंड साइड में भी एग्जीक्यूट करना है, that is 3 into 1 minus 0, that is 3, then 3 into 0 minus 1, 0 minus 1 minus 1, then 0 into 3 minus 0, everything is 0, then second row and third row will be as it is, 0 1 0 0 0 1। आगे बढ़ना है, अभी हम तो कॉलम वाइज आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि अब नेक्स्ट टर्न है कि ये जो 5 है ये मुझे 0 चाहिए करके, तो आप इसका 0 लाना है यहाँ इस पोजीशन पे, तो इसके लिए आप R1 का हेल्प ले सकते हैं, R1 के मदद से ये R2 को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ये भी एक रास्ता है। और दूसरा आप सोचेंगे तो स्टूडेंट, ये एलिमेंट देखो जो 0 है, इसको और सेकेंड रो को आप इंटरचेंज कर दो तो 5 के जगह पे ऑटोमेटिकली 0 बन जाता है, लेकिन वो रिप्लेस करने में ऐसा है ना, तो वापस वो 5 तो नीचे आना ही है, वापस उसको कन्वर्ट करना ही है। आर गेटिंग? और दूसरा डिफिकल्टी और बढ़ जाता है क्या, क्योंकि जैसे ये सेकेंड रो थर्ड में चला जाएगा तो ये 0 एलिमेंट जो है ना वो भी नीचे चले जाएगा, और ये डायगोनल एलिमेंट के अंदर वो 1 चाहिए अपने को, तो अननेसेसरी वो 0 वहां आने से वापस हमारा और काम थोड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए मैं ये इंसिस्ट करता हूँ कि इसके पहले वाले केस में मैंने क्या बोला कि ये 5 को हम चेंज करने के लिए फर्स्ट रो का इस्तेमाल करें, दैट इज बेटर, रिप्लेस करने के जगह पे मेरा ये मेथड में यूज कर रहा हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स अलग अलग अपने हिसाब से सोचते हैं, अपना थिंकिंग, अपना ट्रांसफॉर्मेशन, अपने को क्या जरूरी लगता है वो करने का है, और ऑर्डर पकड़ के रखो। मैं जो कॉलम वाइज ऑर्डर आपके सामने जा रहा हूँ कि नेक्स्ट किसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, वो ऑर्डर ध्यान से फॉलो करो। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई R2 में जो चेंज चाहिए, ये 5 को मुझे 0 बनाना है,
for that I will take help of R1. So R1 जो है उसमें 1 है, 1 को मैं 5 बनाने के लिए 5 टाइम R1 कर दूंगा और उसको R2 में से माइनस करवा के 5 माइनस 5 0 करवा दूंगा. So R1 will remain same. There will be change in R2. 5 minus 5, this is 0. Then 1 minus 5 into minus 1. So this becomes 1 plus 5. That becomes 6. The next element, 0 minus 5 into minus 3. That's minus 5 into minus 3 plus 15. Here it will be 15. And the third row will be as it is. आपको राइट हैंड साइड भी ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है. So first row will remain as it is. Third row will remain as it is. Change will be there in second row. 0 minus 5 times 3 minus 15. Then 1 minus 5 times minus 1. 1 plus, this is 5 into 1, this is 5, plus 5 minus 5 into minus 1. So this becomes 6. And 0 minus 5 into 0, everything will be 0. So now moving to the next step. Next transformation क्या होना चाहिए स्टूडेंट सोचिए. ये मेरा पहला कॉलम देख लो, एज पर रिक्वायरमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से आ चुका है. अब मुझे आगे बढ़ना है, ये -1 को 0 बनाने हैं. दिस 6 is to be converted into 1. अभी आप सोचो कि बना बनाया हुआ ये 1 इधर मिल ही रहा है, तो इसको R2 और R3 को मतलब आप रिप्लेस कर भी दो, तो मैं मिडल ये जगह पे जो 1 लाना चाहता हूँ ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा. जबकि यहाँ तो 3 है ही, जिसको मुझे 1 में कन्वर्ट करना है, उसके जगह पे क्या आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा. तो 15. तो जैसे मेरे को 3 को भी 1 में कन्वर्ट करना ही पड़ रहा है, तो 15 आएगा, तो 15 को भी मुझे 1 में कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ना ही है. तो फायदा क्या हो जाएगा, ये बना बनाया 1 बीच में मिडल प्लेस पे इधर पोजीशन डायगोनल एलिमेंट के पोजीशन में आ जाएगा. तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए काम में आ जाता है, इंटरचेंजिंग R2 with R3. So I will do R2 in interchange R3. इंटरचेंज के लिए एरो यूज करते हैं. तो R1 will remain as it is. R3 बन जाएगा R2, 0 1 3. एंड सेकेंड रो, थर्ड रो बन जाएगा 0 6 15. ओके, कंप्लीट करो पहले, राइट हैंड साइड भी एग्जीक्यूट करना है. तो यही ट्रांसफॉर्मेशन 3 minus 1 0 0 0 1 minus 15 6 0. Let us continue in the next page. ये जो लास्ट स्टेप आया स्टूडेंट, ठीक है, I have taken in the next page. आप लोग कंटिन्यू करिएगा. Now the next, here this -1 I have to make 0, and for that I can use R2. मतलब ये जो -1 यहाँ कन्वर्ट करना है वो R1 में है ना, उसको कन्वर्ट करने के लिए मैं R2 का मदद ले सकता हूँ. So ये -1 है और यहाँ R2 में ये +1 है,
तो उसका आप क्या यूज करेंगे, या तो मुझे जीरो बनाने का है, तो जीरो बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, R1 प्लस कर दूंगा, क्योंकि ये माइनस खुद है एंड यहाँ +1 है, सो इट बिकम्स 1 -1 +1 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट रो में चेंज आ जाएगा, 1 + 0, पहला एलिमेंट चेंज नहीं होना चाहिए और नहीं हो रहा है, 1, दिस इज 0, -3 + 3, देखो यहाँ पे भी 0 आ गया ऑटोमेटिकली, मैंने उसको तो सोचा नहीं था, मैंने तो इसको 0 बनाने के लिए सोचा, लेकिन वो भी एलिमेंट 0 आ गया ऑटोमेटिकली, जो मेरे को चाहिए उधर भी 0, फाइन। सेकेंड रो विल बी एज इट इज, थर्ड रो is also as it is. Same transformation used in right hand side, 3 + 0 3, -1 + 0 -1, 0 + 1 1, second row as it is, third row as it is. अब स्टूडेंट देखो धीरे धीरे हम लोग हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखो ये 6 को मुझे 0 में कन्वर्ट करना है, सो दिस इज इन थर्ड रो, आई विल टेक हेल्प ऑफ फर्स्ट रो और सेकेंड रो। तो मैं सेकेंड को इसलिए इंसिस्ट करूंगा यूज करने के, क्योंकि उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग सेकेंड रो में 1 है, आई कैन हैव सम यूज ऑफ दैट 1। जीरो का मल्टीपल में उपयोग नहीं हो जाएगा, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लीकेशन में वो 0 ही हो जाने वाला है। सो दिस 1 सेकेंड रो में जो है उसको 6 बना के वो 6 इसमें से माइनस कर दो, थर्ड रो के ये 6 में से। सो थर्ड रो में यहाँ मुझे चेंज चाहिए, R3 माइनस 6 टाइम्स R2, देखो 6 हो जाएगा और 6 - 6 0 हो जाना है। So change will be there in R3, R1 is same, R2 is same, and R3 0 - 6 R2, 0 - 6 into 0, 0 - 0 0, 6 - 6 0, and 15 - 6 into 3, 6 into 3 18, 15 - 18 -3, और A इनवर्स एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में राइट हैंड साइड में भी आपको ये अप्लाई करना है। R3 चेंज हो जाएगा, R1 विल बी सेम, R2 विल बी सेम, एंड R3 पे ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा, -15 - 6 into 0, it will be -15 only, then 6 minus 6 into 0, वापस सेम 6, and 0 - 6 into 1, that is -6। so ये हमारा राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया। नाउ ये बचा है, अभी इसको 3 को हमको 0 करना है और ये -3 को मुझे 1 करना है। तो ये पहले मैं इसको -3 को 1 कर दूं, उसके लिए पूरे R3 को मैं डिवाइड बाय -3 कर देता हूँ, पूरे R3 को मैं डिवाइड बाय -3 कर दूंगा, क्योंकि ये पहले के दो एलिमेंट तो 0 है, उसको वो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाले, 0 अपॉन में कुछ भी डिवाइड करो तो 0 ही रहने वाला है। सो R3 डिवाइडेड बाय -3, or you may write like this, R3 multiplied by -1/3. So my R3 will be changed, first row as it is, second row as it is, third row 0 upon -3 0, 0 upon -3 0, and -3 upon -3 1। राइट हैंड साइड भी यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, 3 - 1 1, 0 0 1, -15 upon -3 +5, 6 upon -3 -2, and -6 upon -3 2। और अब ये लास्ट 3 को मुझे 0 करना है, और उसके लिए मैं R1 या तो R3 का मदद लूंगा, R3 काम में आ जाएगा, बिकॉज R1 में तो यहाँ 0 है, R3 का यहाँ 1 होने के कारण इसको मैं 3 बना दूंगा, और 3 - 3
0 हो जाना है. So R2 चेंज करना है. So I will write first R2 minus 3 times R3. This transformation I will apply. R1 remains same, R3 remains same, change will be in R2. 0 minus 3 into 0, 0 का 0 ये रहना है. बाकी के एलिमेंट देखो चेंज नहीं भी हो रहे हैं. ये भी तो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जो एलिमेंट हमको हम चाह रहे हैं चेंज करने का उसी को चेंज करना है, क्योंकि बाकी के एलिमेंट ऑलरेडी हम चेंज करके बैठे हैं, वो वापस से डिस्टर्ब नहीं हो जाने चाहिए. सो दिस विल बी सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 minus 3 into 0, that is 1 minus 0, 1, and 3 minus 3, 0. So A inverse is equals to right hand side ये execute करना है. फर्स्ट रो as it is, सेकेंड रो में चेंज आएगा. 0 minus 3 into 5, that is minus 15. Next is 0 minus 3 into minus 2, that is minus 3 into minus 2 plus 6. And for next element, for R2, right hand side में 1 minus 3 into 2, that is 1 minus 6, that is minus 5. And third row is as it is. As a result, now this left hand side is already converted into identity. I into A inverse is equals to our required matrix. Right hand side जो आया है, and I into A inverse is A inverse. कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो सेम मैट्रिक्स आता है. So this is what the right hand side matrix is, your required matrix of A inverse. अब ये आंसर आपका सही है कि नहीं वो चेक करना है. तो चेक करने के लिए हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन का A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई जो किया ना, उसमें लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो. ए तो आपको गिवन है, ए इनवर्स आपने अभी फाइंड किया, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड के दोनों ये मल्टीप्लाई करके देखो मैट्रिक्स आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना ही चाहिए, तो ही आपका ये ए इनवर्स मैट्रिक्स परफेक्ट है ऐसा माना जाएगा. क्योंकि ए इनवर्स मैट्रिक्स यूनिक है, इसके अलावा और कोई मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता, और इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स आ भी गया तो उसका मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स ए के साथ जो आएगा वो आइडेंटिटी हो नहीं सकता. तो ये वेरिफिकेशन की बात है, बट आपको समय है, मौका है, करना चाहते तो कर लेना है, अदरवाइज आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वॉट एवर यू हैव डन इज परफेक्ट. और ये जब ट्रांसफॉर्मेशन का एप्लीकेशन, कैलकुलेशन, खास करके कैलकुलेशन, क्योंकि बहुत से बार होता है ऐसा कि हम ट्रांसफॉर्मेशन सही करते रहते हैं सोच के, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता है, कैलकुलेशन बराबर नहीं होगा, एलिमेंट्स रॉन्ग आते जाएंगे, तो बाद के ट्रांसफॉर्मेशन भी वो रॉन्ग एलिमेंट के हिसाब से सोचेंगे आप, देन एवरीथिंग विल बी रॉन्ग. एक जरा भी कहाँ कोई स्टार्टिंग के स्टेप में मिस्टेक हुआ तो वो मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड होते चला जाएगा, तो आगे हम चेक भी नहीं करें, भी वही मिस्टेक वहां से पूरा फिर हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आगे चेक करने का मतलब नहीं. तो बी केयरफुल अबाउट कैलकुलेशन एज वेल एज फर्स्ट यू नीड टू थिंक अबाउट प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन. हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ये बात मैं बता देता हूँ, कुछ अलग अलग बच्चों लोग सोच भी लें और वो प्रॉपर भी हो सकता है, लेकिन फाइनल वो अलग ट्रांसफॉर्मेशन सोचने के बाद भी फाइनल ये आंसर पे ही पहुंचना है. आंसर तो ए इनवर्स मैट्रिक्स यही मिलना है, भले सब अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम आगे बढ़ें, बट द डेस्टिनेशन इज सेम.
So with this we conclude here this session. आप लोग ये सेम क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लीजिए, या आप ऐसा कोई क्वेश्चन सोल्ड एग्जाम्पल वगैरह में है वो लेके आप खुद ट्राई कीजिए। ऑर्डर 2 का पहले करिए ताकि थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऑर्डर 3 का फिर करिए, चाहे तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को भी साइमल्टेनियसली ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन में कभी उन लोग ने रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है या कॉलम ट्रांसफॉर्म स्पेसिफाई कर दिया होगा ना, तो उसी से आपको करना पड़ेगा। So with this we are ending here. Practice. Thank you.